We are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 11th chapter. The name of the chapter is Lord Krishna's entrance into Dwaraka. अच्छा. We are reading from verse number 34. एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना महो मक्षोहिणीभिः परिवृत्य तेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथा नलं मिथो विधेनो परतो निरायुध. What's happening is, I'll read the translation. The Lord was pacified after killing those kings who were burdensome to the earth. They were puffed up with their military strength, their horses, elephants, chariots, infantry, etc. He himself was not party in the fight. He simply created hostility between the powerful administrators and they fought amongst themselves. He was like the wind which causes friction between bamboos and so sparks a fire. Anybody wants to read the translation purport, please? I can read, Prabhuji. Please. As stated above, the living beings are not factual enjoyers of things which are manifested as God's creation. The Lord is the genuine proprietor and enjoyer of everything manifested in his creation. Unfortunately, influenced by the deluded energy, the living being becomes a false enjoyer under the dictation of modes of nature. Puffed up by such false sense of becoming God, the deluded living being increases his material strength by so many activities and thus becomes the burden of the earth. So much so that the earth becomes completely uninhabitable by the same. This state of affairs is called dharma glaniha, or misuse of the energy of the human being. When such misuse of human energy is prominent, the saner living being becomes perturbed by the awkward situation created by the various administrators who are simply who are simply burdens of the earth. And the Lord appears by his internal potency just to save the saner section of the humanity and to elevate the burden and to alleviate the burden due to the earthly administrators in different parts of the world. He does not favor either of the unwanted administrators, but by his potential power, he creates the hostility between such unwanted administrators. As the air creates fire in the forest by the friction of the bamboos. The fire in the forest takes place automatically by the force of the air. And similarly, the hostility between different groups of politicians takes place by the unseen design of the Lord. The unwanted administrators, puffed up by false power and military strength, and thus become engaged in fighting amongst themselves over ideological conflicts, and so exhaust themselves of all powers. The history of the world reflects this factual will of the Lord, and it will continue to be enacted until the living beings are attached to the service of the Lord. In the Bhagavad Gita, this fact is very vividly described in 7.14. It is said, the deluded energy is my potency, and thus it is not possible for the dependent living being to supersede the strength of the material modes. But those who take shelter in me, the personality of Godhead Sri Krishna, can cross over the gigantic ocean of material energy. This means that no one can establish peace and prosperity in the world by fruitive activities or by speculative philosophy or ideology. The only way is to surrender unto the Supreme Lord and thus become free from the illusion of the deluding energy. Unfortunately, persons who are engaged in the destructive work are unable to surrender to the personality of Godhead. They are all fools of the first order. They are the lowest of the human species of life. They are robbed of their knowledge, although apparently they seem to be academically educated. They are all of the demonic mentality, always challenging the supreme power of the Lord.
Those who are very materialistic, always hankering after material power and strength, are undoubtedly fools of the first order because they have no information of the living energy. And being ignorant of that supreme spiritual science, they are absorbed in material science, which ends with the end of the material body. They are the lowest of the human beings because the human life is especially meant for re establishing the lost relationship with the Lord. And they miss this opportunity by being engaged in material activity. They are robbed of their knowledge because even after prolonged speculation, they cannot reach to the stage of knowledge, of knowing the personality of Godhead. The summon bonum of summum bonum of everything, and all of them are men of demonic principle, and they suffer the consequences, as did such materialistic heroes as Ravana, Hiranyakashipu, Kansa, and others. Haripur. Hare Krishna, what a brilliant purport. It is, this is the beauty of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is, I was talking to someone, he's like a magician, you know. What is happening in the what is happening in the translation, and what he brings out in the purport is so incredibly potent, क्योंकि क्या होता है अगर हम लोग सिर्फ ये ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, द लॉर्ड वाज पेसिफाइड आफ्टर किलिंग दोस किंग्स हु आर बर्डनसम, है ना, and they were puffed up, and they have military strength, horses. He and Bhagwan himself was not a party in the fight, है ना. उन्होंने क्या करा, he simply created hostility between the powerful administrators, और आपस में मर मर गए वो लोग, that's it. But इसको शिला प्रभुपाद has incredibly explained in the purport. What does it mean? What is this particular verse means to us? अगर ये purport नहीं होगा तो we won't be able to get any points out of this. The only point यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यार भगवान को क्या है, भगवान चाहते हैं कि जो लोग बुरे लोग हैं, बुरे किंग से उनको मर जाना चाहिए. भगवान को ये ठीक लगता है, किसके लिए, अर्थ के लिए बस. एक पॉइंट निकल के आ रहा है इसमें. लेकिन नाउ विद दिस purport, let's see how many points we can get, है ना. And idea is to make sure that we inculcate these learnings from this purport. इसको इसको हम लोग बिल्कुल इसका जूस निकालेंगे, and then we will get some really amazing nuggets for us, है ना. So that we can use it practically in our lives and become a better human being. I was listening to, I got a something. अभी जयप्रकाश स्वामी महाराज की व्यास पूजा थी लास्ट वीक. सो उसमें somebody sent a really amazing message. उनको जयप्रकाश स्वामी महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज, if you have only chance to give one message to your disciple, just one message, what would be that message? उन्होंने बोला, to become an amazing human being. ना ये नहीं बोला उन्होंने टू बिकम, क्योंकि उनको पता है कि बिकम ए अमेजिंग ह्यूमन बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. अमेजिंग ह्यूमन बीइंग का मतलब ये नहीं है कि आप जाओ धर्म धर्म कर्म का काम करो, लोगों की हेल्प करो, भूखों में वो बांटो, खाना वाना बांटो, एंड देन यू डाई. दैट्स नॉट व्हाट That's not what Jayapataka Swami Maharaj कहते हैं. You become a Krishna devotee, but become an amazing human being. होता क्या है कई बार in the garb of becoming advanced in bhakti, we forget to become a human being, है ना. We start judging people, we start criticizing people, we start looking at fault in everyone. And that is one of the drawbacks that we have. जब कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए. People who get onto the spiritual path, when we have little bit of knowledge, we think that we have lot of knowledge. When we become more and more deep, when we go deeper and deeper into knowledge, then we realize we don't know nothing.
सो हाउ डू यू नो यू आर ग्रोइंग? व्हेन यू रियलाइज, ओ माय गुडनेस, आई नो नथिंग, है ना? सो यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देखो परपोर्ट की, लेट्स ब्रेक इट डाउन। हम लोग हैं लिविंग बीइंग्स, वी आर नॉट फैक्चुअल एंजॉयर्स, दैट्स इट। वी आर नॉट फैक्चुअल एंजॉयर्स। किस चीज के? भगवान ने जो बनाया है हम उसके एंजॉयर नहीं है। कौन है एंजॉयर? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, भगवान ही इज द ओनली एंजॉयर, वी आर एंजॉयड, है ना? सो वी आर नॉट ए फैक्चुअल एंजॉयर ऑफ द थिंग्स विच आर मैनिफेस्टेड एज गॉड्स क्रिएशन, हम लोग हैं ही नहीं उसके एंजॉयर। लेकिन हमें क्या करता है, लेकिन दिस होल सोसाइटी, what are everyone trying to do? Enjoy, 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 enjoy everything. We want to, if you ask someone, what do you want to be? Oh, I want to be an engineer. Then you ask them why, and at the end of the day they will say, I want, just want to enjoy, है ना? अब क्या होता है, enjoyment without any responsibility is the recipe for disaster, है ना? So there is only one enjoyer and one proprietor, the Lord, है ना? लेकिन क्या होता है, अब हमें पता है कि वी आर नॉट द फैक्चुअल एंजॉयर्स, लेकिन क्या, क्यों नहीं पता है हमें? अभी तो मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, इस फैक्ट इसमें भी लिखा हुआ है। लेकिन क्यों हम लोग क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिल्यूडिंग एनर्जी विच इज माया। मायया अपहरत ज्ञाना आसुरीम भावमाश्रितः। मायया, माया क्या करती है, उसका ज्ञान का अपहरण कर लेती है। और इसीलिए जो आसुरिक भाव के लिए होते हैं, वो आसुरी भाव के जो लोग होते हैं वो और गर्त में घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, क्योंकि उनको माया देवी ने खत्म खत्म कर दिया है ना? और क्या होता है, ये जो डिलीटिंग एनर्जी, हम लोग है नहीं है, वी आर नॉट एक्चुअल एंजॉयर्स, ठीक है, वी आर नॉट एक्चुअल एंजॉयर्स, लेकिन we become, we like to become, then we become false enjoyer under the net modes of material nature, है ना? अब क्या होता है, जब हम फॉल्स इंजॉयर बनते हैं, देखो बड़ा मजा आ रहा है, आई हैव, सपोज मैंने किसी से किसी की चोरी कर ली, ठीक है, चोरी करके किसी का पैसा ले लिया, है ना? राइट नाउ मजा आ गया, अरे वाह देखो मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया, है ना? और मेरे को अब किसी की जरूरत नहीं है, कोई भगवान की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा ही पैसा है। नाउ ये जो चीज है, ये इसको शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ही इज कॉलिंग इट पफ्ड अप बाय फॉल्स सेंस ऑफ बिकमिंग गॉड। अब आप लोग बोलोगे नहीं 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 ब्रिजेश प्रभु, आई डोंट थिंक आई एम गॉड, आई डोंट बिलीव दैट आई एम गॉड, है ना? आई डोंट बिलीव एनीथिंग, आई डोंट बिलीव लाइक दैट, मैं तो नहीं हूँ गॉड, मुझे पता है आई एम नॉट गॉड। लेकिन देर इज ए वर्स इन भगवत गीता जिसमें बताते हैं भगवान कि ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हम लोग भगवान नहीं मानते अपने आप को, लेकिन हम हर चीज पे अपना राज चलाना चाहते हैं। सास को लगता है बहू मेरे अंगूठे के नीचे रहे, आई एम द लॉर्ड फॉर माई बहू। बहू को लगता है मेरा पति अपने मेरे अंगूठे के नीचे रहे, है ना? फिर माँ को लगता है मेरा बच्चा, बच्चे में, माँ बाप को लगता है मेरे बच्चे हमारे अंगूठे के नीचे रहे, हम जो कहें वो करें। बॉस को लगता है मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो जो मैं कहूँ वो करें, है ना? फिर हमें क्या लगता है, हमें दोस्तों के साथ भी ये लगता है कि हमें ऐसे ही दोस्त चाहिए जो हमें चैलेंज ना करें, जिनको हम लोग जो चाहें वो बोल सकें, हमारी सारी बात हमारे दोस्त माने, हमारे लिए जान देने को खड़े रह जाएं, ऐसे दोस्त चाहिए, है ना? तो क्या होता है, ये जो भाव है, ये जो भाव है टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, टू टू बिकम ए लॉर्ड। हम भले ही अपने आप को भगवान श्री कृष्ण नहीं मांग रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी अपनी किस्मत का, हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, हम सोचते हैं आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। मैं अपनी मेरी जो किस्मत है, मैं, हमारी मुट्ठी में है हमारी किस्मत। अरे नहीं, किस्मत आपकी मुट्ठी में नहीं है ना? किस्मत जो होती है दो चीजों से बनती है, कर्मणा दैव नेत्र। कर्म मतलब हमारे कर्म के हिसाब से जो हमारे साथ अभी जिंदगी में हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग इन आर लाइफ राइट नाउ, ये किसका रिजल्ट है? इट इज द रिजल्ट ऑफ आर ओन पास्ट कर्मास, आर ओन पास्ट कर्मास,
नॉट मेरा पड़ोसी का कर्मा, नॉट मेरे बॉस का कर्मा, है ना, नो नो वन, इट्स माय ओन कर्मा। ठीक है, उसके कारण जो भी मेरे साथ हो रहा है, इट्स माय ओन कर्मा। ना ये जो कॉन्सेप्ट है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ओन कर्मा इज एन इनक्रेडिबल पीस ऑफ एडवाइस। इससे इससे इंपॉर्टेंट कोई वो ही नहीं है, इंपॉर्टेंट एडवाइस ही नहीं है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि एज सुन एज यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, यू रियलाइज दैट नो नो नो, आई एम नो वन, है ना। अब शिला प्रभुपाद इसमें क्या बता रहे हैं, लेट्स गो बैक टू द पर्पट बिकॉज दिस इज इनक्रेडिबल। इसमें कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे निकल सकते हैं इस डिस्कशन में। सो यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जब हम डिल्यूटेड हो जाते हैं, किससे, फॉल्स सेंस ऑफ गॉड, फॉल्स सेंस ऑफ गॉड, गॉड से हम डिल्यूटेड हो जाते हैं, है ना। तो और कैसे होते हैं हम, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं अपनी अलग अलग चीजों से। कभी इधर शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, कभी उधर इन्वेस्ट कर दिया, कभी इधर से पैसा कमा लिया, उधर से पैसा कमा लिया। हमें क्या लगने लग जाता है कि वी आर गॉड, है ना। माया देवी भी कहती है हाँ लगे रहो भैया, तुम ही गॉड हो, तुम ही गॉड हो। हम भी समझ जाते हैं हाँ ठीक है, हम ही गॉड है। उसके बाद क्या होता है, हम वी बिकम द बर्डन ऑफ द अर्थ, है ना। और क्यों बर्डन ऑफ अर्थ क्यों बन जाते हैं, बिकॉज बिकॉज वी थिंक वी आर गॉड, वी ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीवन, है ना। अब क्रोधा तो क्या होता है, देर इज ए वर्स इन भगवत गीता, ध्यायते विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा, कामा क्रोध विजायते। जब हम अपने अपने आप को गॉड समझने लग जाते हैं तो मतलब हमारी मर्जी से सारा काम होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान हैं। सास बोलती है मेरी बहू मेरे जैसे रहे, जो मैं बोलती हूँ वैसे करे। बहू कहती है नहीं, मैं अपना सारा घर छोड़ के आई हूँ, मेरे पति मेरे जैसा रहे। और मेरी सास मेरे उस पर चले, क्योंकि मेरी सास मेरे मेरे लिए वो नहीं दे रही है। मेरी सास इज नॉट माई मास्टर, माई हस्बैंड इज नॉट माई मास्टर, मेरी सास इज नॉट माई मास्टर, बिकॉज आई एम मास्टर, बिकॉज आई एम गॉड। और सास क्या सोचती है, अरे मेरे बच्चे को मैंने पाल पोस के बड़ा करा है, तो मेरी जो बहू है वो मेरे अंडर होनी चाहिए, आई एम हर गॉड, है ना। तो ये जो फॉल्स सेंस ऑफ बिकमिंग गॉड होता है, इसकी वजह से क्या होता है, वी स्टार्ट मेकिंग अदर पर्सन्स लाइफ हेल, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मेरे को लगता है मैं गॉड हूं, तो मैं मेरे को जो करना है करूंगा, मैं जिसको मारना है मार दिया, जिसके साथ जो करना है कर दिया, जिसको लूटना है लूट लिया, है ना। पूरे जो जो इसके संसाधन हैं, है ना, रिसोर्सेज हैं इस अर्थ के, सबको निचोड़ लिया। ठीक है, पोल्यूशन की हद कर दी, प्लास्टिक डजेंट मैटर, प्लास्टिक बनाओ, प्लास्टिक बनाओ, नहीं नहीं मरेगी कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अर्थ में इतनी जगह हो जाएगी, उसके बाद मैं मर गया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये सोचते हैं लोग, दे वांट टू बिकम गॉड। और उसके बाद क्या होता है, दे मेक दिस होल अर्थ कंप्लीटली अनइनहेबिटेबल, है ना। नाउ दिस अफेयर इज कॉल्ड धर्मस्य ग्लानि। आप लोगों को वो वर्ष याद होगा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्मस्य ग्लानि, धर्म का जब जब धर्म की ग्लानि हुई है, जब जब हम लोगों ने मिसयूज करा है अपनी ह्यूमन बीइंग होने को, तब तब क्या होता है, भगवान आते हैं, है ना। अब क्या होता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, हर बार भगवान को आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। भगवान ने क्या कर रखा है, अपनी माया को बिठा रखा है ना। तो तो क्या होता है, जो सेन लोग होते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, कि क्योंकि जो नॉन सेंसिकल लोग होते हैं वो ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, है ना। अब क्या होता है, ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में राइट नाउ आप देखो, जितने भी पॉलिटिशियन है, मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस आर रियली करप्ट। उनको कोई मतलब नहीं है देश से, समाज से, सोसाइटी से, दे सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। बोले 5 साल की बात है, जितना लपेट लो लपेट लो, है ना। So now those administrators who are actually doing all of these things, they are actually nothing but burdens of earth, है ना। एंड फिर लॉर्ड क्या करते हैं, लॉर्ड अपीयर्स बाय हिज इंटरनल पर्सन, जब भगवान खुद आते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। मैं सृजन करता हूँ, मैं इस पृथ्वी पे आता हूँ, और इस पृथ्वी का जो बर्डन है उसको एलिविएट करता हूँ, उसको कम करता हूँ, है ना, अलग अलग जगह पे जाके, है ना।
अब भगवान, अब शिला प्रभुपाद यहाँ पर नहीं रुके, वो थोड़ा आगे गए, क्या बोल रहे हैं? ही डज नॉट फेवर ईदर अनवांटेड एडमिनिस्ट्रेटर बट बाय, ही डज नॉट फेवर ईदर ऑफ द अनवांटेड एडमिनिस्ट्रेटर बाय, क्योंकि सारे एडमिनिस्ट्रेटर वो हैं, खराब हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर से लड़ा दिया, दोनों को खत्म करवा दिया, है ना? क्या कराते हैं वो, दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी करवा देता है ना? और क्रिएट्स, और जैसे जैसे जंगल में आग लगती है, वैसे ही भगवान भी इन लोगों में आग लगवा देते हैं, आपस में ही बेचारे मर एक दो, क्योंकि भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों में लड़ाई करवा दी, दोनों आपस में मर गए। सो hostility between different groups of politicians takes place by unseen design of the Lord, है ना? नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना? हम लोगों ने अपनी भक्ति वृक्षा में भी डिस्कस करा था, है ना? हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट देयर आर टू थिंग्स, कर्म कर्मणा दैव नेत्रेण। एक तो हम कर्म करते हैं, वो हमारे हाथ में पूरी तरीके से, है ना? लेकिन दैव नेत्रेण, भगवान जो सैंक्शन करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है ना? अगर मैं कोई एक्ट कर रहा हूँ, इफ मैंने 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 एक क्लास स्टार्ट करने के लिए जूम स्टार्ट करा, हाँ, ये मेरे हाथ में था, लेकिन आप सब लोग उधर पे आओगे और इस क्लास को सुनने की कोशिश करोगे, ये आई कांट कंट्रोल दैट, है ना? सो दैट इज दैव नेत्रेण। भगवान को चाहिए था, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये क्लास नहीं होती, तो भगवान को चाहिए था क्लास हो, तो मैंने जब जूम ऑन करा, भगवान ने क्लास ऑर्गेनाइज करवा दी, है ना? तो कर्मणा भी जरूरी है, देव नेत्रणा। अगर भगवान नहीं चाहे तो मैं भी ऑन करके बैठूं, मेरा इंटरनेट नहीं चले, क्या कर लूंगा मैं, है ना? इंटरनेट नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, लैपटॉप खराब हो गया है ना? आप लोगों को अपना अपना कोई काम आ गया है, कोई ऑनलाइन है ही नहीं, क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, है ना? सो देर इज वेरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देर इज ए अनसीन डिजाइन ऑफ द लॉर्ड। जो भी होता है भगवान का, उसमें हाथ होता है। तो हम लोग भक्ति विक्षा में भी डिस्कस कर रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो भी गलत काम हो रहे हैं भगवान करवा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, देन इसका मतलब ये है कि जितने सारे लोग जो मासूम लोग मर जाते हैं इधर उधर, वो भगवान का उसमें हाथ है नहीं, एक्चुअली भगवान का उसमें हाथ नहीं है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, कोई अलग अलग लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से भुगतते हैं, भगवान बस उन कर्मों का जो रिजल्ट होता है उस पर सैंक्शन कर देते हैं। अगर भगवान सैंक्शन नहीं करे तो नहीं होगा वो। इसीलिए भक्ति की बहुत वैल्यू है, क्योंकि भक्ति में क्या होता है, एज सुन एज यू गेट इनटू भक्ति, एज सुन एज यू स्टार्ट चैंटिंग द होली नेम, एज सुन एज यू स्टार्ट सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द लॉर्ड, व्हाट हैपेंस इज लॉर्ड टेक्स रेन्स ऑफ योर लाइफ इन हिज हैंड्स। भगवान आपकी गाड़ी चलाने लग जाते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान जब ये गाड़ी चला रहे हैं, तो हम लोगों को क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत मिल गई है। खाना खाना है, उबर ईट्स, डाला उबर ईट्स, खाना आ गया, है ना? फास्ट फूड खाना है, किसी भी फास्ट फूड जॉइंट पे रोक लिया, ड्राइव थ्रू से खाना खा लिया, है ना? हम लोगों को कुछ खरीदना है, अमेजोन पे गए, 10 सेकंड में आपने ऑर्डर कर दिया और दूसरे दिन आपके घर पे आ गया। आपको मूवी देखनी है, किसी भी ओटीपी प्लेटफॉर्म पे गए, आपने प्रेस करा बटन और मूवी शुरू हो गई। वी आर प्रोन टू, वी आर एक्चुअली एडिक्टेड टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो भगवान ने तो, अब जैसे एज ए डिवोटी भगवान ने हमारी लगाम अपने हाथ में ले ली है, लेकिन हम क्या है, हम अभी भी मैं अपनी बता रहा हूँ, ढपोल के ढपोल हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अभी के अभी चाहिए भगवान का रिजल्ट। अगर भगवान मेरी प्रॉब्लम्स अभी नहीं सॉल्व कर रहा है, तो मुझे क्या लगता है कि भगवान इज नॉट विद मी, जबकि भगवान यार, ही इज द ओनली वन हु इज कैरिंग मी इन दिस मोमेंट, है ना? देयर वाज एन अमेजिंग पोर्ट्रेल, देयर वाज अमेजिंग स्टोरी दैट वाज देयर। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, ही वाज वॉकिंग, है ना, और उसकी, ही पास्ड अवे, ऊपर गया, तो उसकी लाइफ की जर्नी उसको दिखाई गई, है ना, जैसे प्लेबैक होता है ना, उस दिखाया गया, रिप्ले। तो उसने देखा कि बाजू में एक स्क्रीन चल रही थी जिसमें ना जमीन पे फुटस्टेप्स थे, है ना? वो देख रहा था कि
एक तो उसके खुद के फुटस्टेप में उसको पता है, दूसरे उसको पता नहीं किसके फुटस्टेप में रेत पे। तो फिर उसने पूछा, अरे ये दूसरे फुटस्टेप किसके हैं? तो भगवान साथ में खड़े थे, बोले वो बेटा वो मेरे हैं। अच्छा आपके हैं, तो मतलब आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा? बोले बिल्कुल नहीं छोड़ा बेटा। देन सडनली उसने देखा कि जब जब परेशानियां आई हैं, तब तक दो फुटस्टेप्स की जगह एक ही पेयर फुटस्टेप्स का दिख रहा था। तो कह रहे हैं भगवान, यार आपने तो बोला आपने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं, लेकिन जब जब मेरे को परेशानी आई, एक फुटस्टेप्स गायब हो गए, एक पैर एक ही बचा है। दैट मीन जब जब मेरे को परेशानी हुई आप मुझे छोड़ के चले गए। तो भगवान ने बोला, गधे, ये जो फुटस्टेप तू देख रहा ना ये मेरे हैं। तू तो चलने लायक भी नहीं था, तेरे को तो मैं गोद गोद में उठा के चल रहा था। वो जो दो फुटस्टेप्स हैं, जो एक पैर फुटस्टेप का है, वो मेरा है। एंड दिस इज ट्रू। जब हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान मेरी क्यों भगवान क्यों मेरी लाइफ में ना आपने हर रोज भगवान मेरी लाइफ में उंगली कर रहे हैं। पता नहीं क्या चाहिए आपको यार, सब कुछ तो दे दिया यार, मैंने सब कुछ आप पे निछावर कर दिया, और क्या लोगे यार? वो डायलॉग है ना, बच्चे की जान लोगे क्या? आप क्या करना है आपको, बताओ मुझे। बहुत बार होता नहीं है ऐसा, कि हम सब के साथ होता है। लेकिन ये हमें ये समझना चाहिए कि राइट नाउ जो हमारी कंडीशन है ना, जो हम भगवान से बोल भी पा रहे हैं, हम लोग ये एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अगर वो नहीं होते तो हम बोलने, सोचने, समझने और खड़े रहने, बैठने की भी हालत में नहीं होते। वी वुड हैव डन समथिंग, है ना? बोलो बेटा, क्या बोलो? ओके। सो हाँ, तो दिस इज व्हाट हैपेंस, हमारे साथ क्या होता है, वी गो, एवरीबडी, जो हमारी लाइफ साइकिल है ना, प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए लाइफ में हर चीज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी के अभी चाहिए। और वो इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लगता है हम गॉड है। हमारे पास iPhone 16 आ गया है, तो हम भगवान बन गए भगवान। हमारे पास दुनिया भर की एप्स हैं, तो हम बन गए भगवान। बेटा ये वाली लाइट ऑन कर दो, लाइट, ये वाली लाइट ऑन करो। हम लोग ने ये कर लिया तो हम बन गए भगवान, है ना? हमारे पास फोन है, हम बन गए भगवान। हमें जो चाहिए हम फोन पे ऑर्डर कर देते हैं। हमें जिससे बात करनी है पूरे वर्ल्ड में हम कर लेते हैं। हमें पूरी दुनिया को एक ही बार में मैसेज देना है, तो हम फेसबुक पे जाके दे देते हैं, यूट्यूब पे जाके वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। दुनिया में जो सोचना हो, देखना हो, सब देख सकते हैं। हम लोग क्या है? हम लोग हैं भगवान, हमें लगने लग जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी थिंक हमारा हक है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो जगह है, जिस जगह हम बैठे हैं, जिसको कहते हैं पृथ्वी, मृत्यु लोक, इसका मेन, द ओनली ओनली क्या बोलते हैं इसका सिम्टम क्या है, इस पूरे इसका, दुखालय शाश्वतम। ये क्या है? इसमें हमको सुख मिलेगा ही नहीं, वो टेम्परेरी। दो दुखों के बीच में जो बिना दुख की जगह आती है, वो उसको लगता, हमें वो लगता है कि वो सुख है। वो सुख नहीं है, वो दो दुखों के बीच में जो हमें हल्का सा ब्रीथिंग स्पेस मिला ना, वो है, वो हमें लगता है वो खुशी है। वो खुशी नहीं है। खुशी, हम लोगों को पता ही नहीं है खुशी क्या होती है। खुशी जो भगवान, जो भक्ति में जो खुशी है, जिसने भक्ति करी है, सिर्फ वही हल्की हल्की सी जो खुशी मिलती है इधर उधर, दैट इज प्योर ब्लिस, है ना? वो कोई और किसी को मिल नहीं सकती है वो, है ना? तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि because of the unseen design of the Lord, administrators get puffed up, and उनको क्या लगता है, मुझे और पावर चाहिए। पहले क्या होता था हम लोगों को, कि हम लोग संडे टू संडे मूवी का वेट करते थे। हर संडे मूवी आती थी, एक मूवी होती थी पर वीक, एक मूवी आती थी, ठीक है? एंड देन उसका हम लोग बड़ी उससे वेट करते थे। एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन। फिर जब दो चैनल हो गए, लोग पागल हो गए, वाह, दो दो चैनल, DD1, DD2, वाह, है ना? तो लोगों को लगा यार, पता है दो चैनल हो गए, अब तो एक नहीं दो चैनल है। उसमें ही लोग पागल थे, है ना? लेकिन अब क्या हो गया है, अब इतने चैनल हो गए कि यार 100, 200, 300 चैनल्स। अब लोगों को क्या लगता है, देर वॉज ए रिसर्च डन, पीपल स्पेंड मोर टाइम इन चेंजिंग चैनल्स देन बीइंग ऑन अ चैनल। अगर वो देखते हैं, उन्होंने 8 घंटे टीवी के सामने बैठे हैं, तो 8 में से साढ़े 4 घंटे देवर जस्ट फ्लिकिंग। एक जगह पर बैठ के तो उन्होंने सिर्फ 4.5 घंटे ही देखा है।
मतलब तो इतना हम लोगों को वो मिल गया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि हमें क्या लगता है कि हम वी बिकम, हमें क्या लगता है कि हमें बहुत पावर आ गई है, हम कुछ भी कर सकते हैं अब। अगर हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है, वी कैन डू एनीथिंग, है ना। एंड दैट्स व्हाई वी बिकम एंगेज्ड इन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। अच्छा, तेरे को ये पसंद है, कैसे पसंद आ गया तेरे को? व्हाट काइंड ऑफ हिंदू यू आर, तेरे को ऐसे कैसे पसंद आ रहा है? एंड देन यू स्टार्टेड व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर, हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे धर्म को ऐसा बोलने की? एंड देन वी स्टार्ट फाइटिंग एंड फाइटिंग एंड फाइटिंग एंड फाइटिंग, एंड देन फिर क्या होता है, आपस में ही लड़के फुम, खत्म। ठीक है। सो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैं शेयर करता हूँ क्लियर, शिला प्रभुपाद की जो क्लैरिटी है वो देखना ना, यहाँ बोल रहे हैं, the history of the world reflects its factual will of the Lord, and it will continue to be enacted until the living beings are attached to the service of the Lord. ये जो हिस्ट्री है, किस चीज की हिस्ट्री है? हिस्ट्री एंगेज इन फाइटिंग among themselves over ideological conflicts and so exhaust themselves of all powers. ये जो हो रहा है ये क्या है? ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? फैक्चुअल विल ऑफ द लॉर्ड, भगवान की इच्छा है ये कब तक चलेगा? जब तक कि सारे लिविंग बीइंग भगवान की सेवा में नहीं लग जाता है। आ, अब आप लोगों को भगवत गीता 7.14 दिख रहा है? यस प्रभु जी। ओके। यस प्रभु जी। सो 7.14 में भगवान, इसमें शिला प्रभुपाद इसको कोट कर रहे हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। देवी ही एषा गुणमयी, देवी ही एषा गुणमयी मम माया, मम ये मेरी है, ये मेरी है माया, और ये दुरत्या है। दुरत्या इज वेरी हार्ड टू ओवरकम, इससे पार नहीं पा सकते आप। ये देवी जो है गुणमयी है, सद्गुण रजगुण तमोगुण से इन्होंने पकड़ रखा है सबको। ये किसकी है ये माया? ये मेरी है, ये मेरी शक्ति है, इससे कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन माम एव, ये मामेव है ना, माम मम एव ये प्रपद्यंते, जो मेरे को सरेंडर कर देता है, प्रपद्यंते का मतलब सरेंडर करता है, मायाम एताम तरंती ते, वो माया से आराम से बिना प्रॉब्लम के पार कर जाता है। ठीक है। इसलिए शिला प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि दिस इज वेरी विविडली डिस्क्राइब्ड, है ना। सो ये जो एनर्जी कौन है? मेरी पोटेंसी है। not possible to no, and it is not possible for a dependent living beings to supersede the strength of material modes. लेकिन those who take shelter in me can cross the gigantic ocean of material energy, है ना। इसका क्या मतलब है? शिला प्रभु बता रहे हैं कि ये जो पीस और प्रोस्पेरिटी है जिसके पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं, cannot be established by fruitive activities। कोई आप लोगों में से बता सकता है फ्रूटिव एक्टिविटीज का क्या मतलब है? एनीबडी? जो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में एक्टिविटीज करते हैं प्रभु जी, वो। हाँ, फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब हम इसीलिए काम करते हैं कि कुछ मिल जाए, है ना। इसलिए नहीं काम करते कि कुछ, जैसे कई लोग कहते हैं कि क्या भूखों को खाना खिलाना फ्रूटिव एक्टिविटीज है कि नहीं है? भूखों को हम खाना, कोई बोलेगा कि नहीं फ्रूटिव नहीं है क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भूखों को खाना इसलिए खिला रहा हूँ। अच्छा, आपको आपको खुशी मिल रही है उससे? हाँ, मुझे खुशी होती है, तो मतलब आपको कुछ मिल रहा है ना। तो अगर वो नहीं, आपको खुशी की जगह दुख हो तो क्या आप खिलाते रहोगे उसको? नहीं। हाँ, तो फिर ठीक है, तो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, आप लोगों को खाना खिला रहे हो अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। दैट मीन्स देर इज समथिंग दैट यू वांट इन रिटर्न, दैट इज कॉल्ड फ्रूइटिव एक्टिविटीज, है ना। फ्रूइटिव एक्टिविटीज, इट्स अ वेरी, आपको पता है फ्रूइटिव इज नॉट, आई शो यू समथिंग, फ्रूइटिव, ठीक है। तो फ्रूट के रिजल्ट के लिए हम करते हैं ना प्रभु जी, इसलिए हाँ, fruit। प्रोड्यूसिंग। सो फ्रूटिव जो है ना, एक्चुअली फ्रूटिव एक्टिविटी, फ्रूटिव का मीन होता है एंजॉइंग, पोजेसिंग। अगर आपको मजा आ रहा है उसके लिए आप जो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्रूटिव एक्टिविटी, है ना। नाउ प्रॉब्लम इज, प्रॉब no, Naren, why you're opening it again and again?
आइदर ये इनसाइड और आउटसाइड बेटा ना। ओके। ओके। सो फ्रूटिव एक्टिविटीज ये होती है। फ्रूटिव एक्टिविटीज का क्या मतलब है कि, हाँ, और दूसरी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आपको ना तो पीस मिलेगी ना ही वो मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, अगर आप फ्रूटिव एक्टिविटीज में लगे रहोगे या फिर स्पेकुलेटिव फिलोसफी और आइडियोलॉजी। कोई बता सकता है व्हाट इज स्पेकुलेटिव फिलोसफी? When we don't have, we're not sure about what it is, हम अपना ideas, we put our ideas about वेरी something. नाइस, वेरी Yeah. नाइस, वेरी नाइस। मनगढ़ंत जिसको कहते मन हैं, घर में, हाँ मन घर। जो मन में आया, अरे हाँ ये मेरे को ठीक लग रहा है ना। जैसे मैंने भक्ति वृक्षा में बता रहा था ना, कि आदमी क्या होता है, आदमी ये नहीं देख पी लाइक, क्या नाम है उनका, हिज होलीनेस, क्या नाम है उनका, आई थिंक इट वाज स्वयं भगवान ही हाँ स्वयं भगवान केशव महाराज ही बता रहे थे, आई थिंक हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव महाराज कहते हैं कि वी डोंट सी द थिंग्स एज इट इज, वी सी थिंग्स एज वी आर, व्हाट वी सी इज नॉट द फैक्ट, है ना। जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वी सी आर ओन रिफ्लेक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब जो आदमी जिस भाव से सामने वाले को देख रहा है, आप उसको वही निकल वो, उसको आप कुछ भी दिखा दो उसको वही दिखेगा जो उसको देखना है। समटाइम्स मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि आई टेल यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू ओनली पिकअप वॉट एवर यू वांट टू पिकअप, है ना, बाकी सारी चीजें तुम भूल जाओ, जैसे तुम्हें तुम्हें खुद के लिए तुम्हारे दिमाग में रखना होता है तुम रखते हो, बाकी सारी चीजें तुम ऐसे ही भूल जाते हो। इट्स ट्रू विद एवरीवन। सो देयर वाज दिस गाय जो नो अल्कोहलिक अनोनिमस में जाके लोगों को बोलता था शराब मत पियो, शराब मत पियो। तो उसने क्या करा, कुछ कीड़े लाए, उसको ग्लास में डाला, उसमें पानी भर दिया, कीड़े तैरने लग गए अंदर ऊपर ऊपर, है ना। फिर उसने फिर वैसे ही दूसरे कीड़े ला के रखे, उसमें शराब डाल दी, अल्कोहल, तो वो सारे कीड़े मर गए। तो उसने बोला कि तुम्हें क्या दिख रहा है भैया, ऐसे तुम्हें क्या पता चला? तो एक अल्कोहलिक बोलता है कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, है ना। सो दैट मीन्स वी डोंट सी हाउ थिंग्स आर, वी सी हाउ वी आर, वी सी एट वी लुक एट थिंग्स हाउ वी आर, है ना। और इसीलिए स्पेकुलेटिव फिलोसफी और आइडियोलॉजी आर रबिश, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन कि हमारा मूड क्या है उस वक्त। अगर मैं अच्छे मूड में हूं तो कोई गाली भी देगा तो पता नहीं चलेगा, अगर मैं कोई बुरे मूड पे हूं ना, किसी ने थोड़ा सा भी अच्छा भी कह दिया तो मुझे लगेगा ताना मार रहा है कोई, है ना। सो दैट मीन्स स्पेकुलेटिव नॉलेज, जो मनगढ़ंत चीजें होती हैं, इनसे तो हम लोग कुछ हम पा ही नहीं सकते। इट इज एब्सोल्युटली हमें नर्क भिजवाने वाली, भिजाने का तरीका है। और एक तो स्पेकुलेटिव नॉलेज और दूसरा फ्रूटिव एक्टिविटीज, है ना। ना अगर इन दोनों से आपको पीस और प्रोस्पेरिटी नहीं मिल सकती है तो क्या किससे मिलेगी? सरेंडर ऑन टू सुप्रीम लॉर्ड, दस बिकम फ्री फ्रॉम। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यश्यामि मा शुचः। आई विल लुक आफ्टर यू, डू नॉट फियर, भगवान खुद ही बोल रहे हैं। ऋचा माता जी, डू यू हैव ए क्वेश्चन? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। वो मुझे कभी कभी उस पे कंफ्यूजन होता है, जो अभी आप फ्रूटिव एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ। तो प्रभु उसमें मुझे ये आपसे क्लियर करना था कि जैसे कई बार, जैसे आप अभी बता रहे थे कि हमें कुछ मिल रहा होता है व्हेन वी वांट टू एंजॉय, या हमें कुछ खुशी भी हाँ। मिल रही होती है। बट हाँ। वो तो प्रभु कहीं ना कहीं सेल्फलेस है ना, कि हम किसी को, जब कोई हमें बहुत बीमार दिखता है तो हम उसको हेल्प करना चाहते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या फिर अगर कोई बहुत हंग्री है, भूख से मरा जा रहा है या परेशान है भूख के मारे, तो हाँ। हम उसको आउट ऑफ कंपैशन खिला रहे होते हैं ना खाना, तो हाँ, उसमें ठीक है हमें खुशी मिलती है, बट इट इज मोर ऑफ सेल्फलेस काइंड ऑफ हैप्पीनेस। तो तो यही, उसमें फ्रूटिव एक्शन क्यों है वो इन्वॉल्व? वो मुझे वेरी नहीं गुड, समझ आता। जब हम ये सोचे कि हाँ अगर मैं ये करवाऊंगी तो इससे मुझे कुछ मिलेगा, देन आई थिंक इट्स अ फ्रूटिव एक्शन प्रभु जी। आई डोंट नो प्रभु जी, कैन गुड, यू प्लीज? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन माता जी, वेरी गुड क्वेश्चन। आई टेल यू, आई टेल यू फ्रूटिव का क्या मतलब होता है ना। फ्रूटिव का मतलब होता है फल, है ना। फ्रूट्स का मतलब होता है फल।
जिस चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल द रीजन, रिचा माता जी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक, क्योंकि ये मैं, मेरा भी क्वेश्चन था और मेरे को ऐसे ही समझाया गया, तो वैसे ही समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। आप प्लीज बुरा मत मानना, किसी के लिए भी, सबके लिए है ये, ठीक है, सबके लिए है, मेरे लिए भी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया, ठीक है, अब मुझे कैसे पहले तो मुझे, अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं ये सेल्फलेस सर्विस है किसी भूखे को खाना खिलाना, ना उस भूखे को खाना खिलाने, पहली पहली बात तो, भूखा है, उसको मैं खाना खिलाऊंगा तो उस भूखे को कैसा लगेगा, ये फीलिंग हमें पता है। अगर हम बहुत भूखे हैं, हमें खाना एकदम से मिल जाता है, तो हमें बड़ा बड़ा सुकून मिलता है, ठीक है। और ये हमने देखा हुआ है अपने ऊपर। और क्योंकि हम, ये जो आनंद हमें आता है उस भूख लगने के बाद, बहुत भूख लगी है और हम खाना खा रहे हैं, तो उस वक्त जो आनंद आता है, ये आनंद हमें पता है कैसा होता है। ये आनंद हम दूसरों को देना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फ्रूटी एक्टिविटीज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम सामने वाले को खाना खिला के उसकी देह जो है ना, उसकी देह, उसकी जो देह, उसकी जो बॉडी है, उसको जो मजा आ रहा होता है ना, वो हम इमेजिन करते हैं। इसीलिए पीपल गेट मोर अट्रैक्टेड टू डू सोशल सर्विस, क्योंकि सोशल सर्विस में क्या होता है, एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो अंदर का सेटिस्फेक्शन एक्चुअली पूरी तरीके से फ्रूटिव है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी सी समवन हंग्री, वी थिंक लाइक वी पुट आवरसेल्फ इन देयर शूज, एंड व्हेन वी फीड देम, उनके चेहरे पे जो मुस्कान दिखती है हमें, उससे हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी पुट आवरसेल्फ इन देयर शूज। जैसे एक, जब तक मेरे को बेटा नहीं था, तब तक आई नेवर अंडरस्टूड पेरेंट्स। यार इतना क्या है यार, मतलब समझ में नहीं आता, तुम लोग इतना क्या टेंशन लेते हो बच्चों की, है ना। अब मेरा खुद का बेटा है, तब तक मुझे पता ही नहीं चला, है ना, क्योंकि मुझे क्या लगता था, जब अब मेरे साथ क्या है, अब मेरा 7 साल का बच्चा है, ठीक है। अभी मेरे को पहले क्या होता था, सड़क पे से कोई बच्चा किडनैप हो गया, ये हो गया, सुन के बुरा लगता था, बट दैट्स इट। नाउ आई गेट हॉरिफाइड, लाइक हॉरिफाइड, बिकॉज आई पुट माई सेल्फ इन देयर। अगर मैं, क्योंकि अगर मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं, उसमें मुझे ना पैसा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना ही मुझे नाम मिल रहा है, मैं चुपके से कर रहा हूँ, ठीक है, नाम भी नहीं मिल रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा है, चुपके से मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो मुझे अंदर से अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि आई हैव पुट माई सेल्फ इन दैट शूज, और एक्चुअली मजा मुझे ही आ रहा है, एंड दैट इज वाई इट्स कॉल्ड फ्रूटिव। लेकिन इसको फ्रूटिव नहीं बनाना है, इसको फ्रूटिव के ऊपर ले आने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप भूखे को खाना मत खिलाओ, भूखे को प्रसाद खिला दो, and suddenly it is no longer fruitive, because now what you're doing is you're going on a different platform now. Now आप क्या कर रहे हो, बॉडी के लिए, बॉडी की बात ही नहीं कर रहे हो। और अभी आप क्या कर रहे हो, आप बॉडी की क्या बात कर रहे हो, नाउ you're talking about body, you're taking care of the, not just the body, you're taking care of the soul, actual soul. Yeah, all right, that's all. Yeah. So सो व्हाट हैपेंस इज, दैट्स व्हाई फ्रूटिव एक्टिविटीज हम लोग उसको इसलिए कहते हैं, क्योंकि हमें वैसे कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मॉनेटरी हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, ना ही हमारा नाम, नेम, फेम, ग्लोरिफिकेशन कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन हमें अंदर से मजा आ रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी को जो मजा आ रहा है, हम उनकी बॉडी को मजा दिला रहे हैं, और उसमें अपने आप को देख रहे हैं कुछ सेकंड के लिए, इसीलिए वी फील सेटिस्फाइड डूइंग दैट वर्क। इट इज वेरी वेरी डीप, इट्स वेरी सटल, वेरी वेरी सटल, इसको समझने के लिए थोड़ा, इसीलिए थोड़ा सा हार्ड है इसको समझाना फ्रूटिव को, स्पेशली व्हेन वी आर डूइंग समथिंग गुड, है ना, अपेरेंटली गुड। लेकिन जब तक हम बॉडीली कॉन्सेप्ट से ऊपर नहीं निकलते हैं, इट इज ऑलवेज गोना बी फ्रूटिव। फ्रूटिव दैट मीन्स, जब तक हम सोल की बात नहीं करेंगे ना, तब तक ऑलवेज फ्रूटिव। अगर मैं सामने वाले को प्रसाद खिला रहा हूँ, और भूखा भी है वो, लेकिन उसको मैं प्रसाद खिला रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है, ओ माय गुडनेस, ही सो हैप्पी, लुक ही इज ईटिंग, तो वहां तक ठीक है। लेकिन बिकॉज मैंने उसको प्रसाद खिलाया है, व्हाट हैपेंड, दिस होल एक्ट इज नो लॉन्गर ऑन अ बॉडीली प्लेटफॉर्म, इट इज ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। as soon as it goes on a spiritual platform, no longer stays fruitive, it becomes fully transcendental. एंड इसीलिए कहते हैं कि करो, यू डू ऑल काइंड ऑफ गुड वर्क, बट मेक श्योर you give people bhakti with that, and that what they will do is, it will change the spirit,
fruitive actions into spiritual actions. It will change the fruitive actions into bhakti. It will change vikarma, sorry, karma into akarma. आपने किसी को खाना खिलाया, भूखे को, है ना, तो आपका कर्मा बन दिया, अच्छा कर्मा है, अच्छा कर्मा बन दिया। आपने किसी भूखे से खाना छीन के खा लिया तो आपका विकर्मा बन गया। दोनों केस में आपको वापस आके या तो दोनों किसी न किसी चीज से भुगतना ही पड़ेगा आपको। लेकिन जैसे ही उसको अकर्मा करा, अकर्मा का कैसे करा हम लोगों ने, वी गिव देम प्रसादम एंड सडनली इट विल बिकम प्रसाद, एंड दैट्स व्हेन इट्स नॉट फ्रूटी। रिचा माता जी, थोड़ा सा सटल है, इज इट, डज इट मेक सेंस, और थोड़ा। प्रभु एक्चुअली क्या होता है ना प्रभु, मेरे साथ ही सिचुएशन बहुत बार जैसे मैं फेस करती हूँ कभी कभी। जैसे अभी मैं इंडिया गई थी तो मैंने इस टाइप की सिचुएशन देखी। जैसे वृंदावन में भी प्रभु क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो ऐसे कहते हैं माता जी ये लगवा लो, टीका लगवा लो, वो लगवा लो। तो मुझे ना जैसे सब हाँ लोग आपको पीछे बहुत फॉलो करते हैं ना, ऐसे कर हाँ लो ऐसे हाँ कर लो। और हाँ वृंदावन में तो स्पेशली कहते हैं ना प्रभु कि आप किसी को मना मत करो, ऑफेंस मत करो, कुछ मत करो, है ना। और हाँ। एक बार तो प्रभु मैंने कर्मा के ऊपर भी क्लास सुनी थी। मुझे आपका पॉइंट पहले से ये बात मालूम है कि प्रसाद खिलाना चाहिए, पर मैं उस सिचुएशन के बारे में पूछ रही हूँ जब हमारे पास आसपास प्रसाद नहीं है, या कोई बहुत परेशान है, या कोई बीमार है, तो क्या हम उनको इग्नोर कर दें प्रभु, या नो 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 नो, इट इज बेटर टू डू कर्मा और देन फिर नॉट डू उसको एनीथिंग। भगवान से जोड़ दें कि भगवान आई हैव डिड इट एज अ सर्विस टू यू, प्लीज It's एक्सेप्ट इट। better to do something than not doing anything. But it is हम्म। better to do something which has spiritual element than to do normal. ठीक है, वो तो आपको पता हाँ, है। वही वही लेकिन प्रभु, कुछ मुझे नहीं बहुत है, बड़ा कंफ्यूजन कुछ रहता है। नहीं है हाँ। ना, तो प्लीज मेक श्योर, इवन इफ इट्स इन वृंदावन, वट एवर इट इज, ट्राई एंड ऑलवेज कैरी कुकीज वगैरह, कैरी करके रखो, समथिंग यू शुड कैरी टू गिव अवे। अगर पैसे मत दो किसी को, मेक श्योर कि आप उनको खाना भी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो। अगर कहीं प्रसादम, उनको बोलो चलो ठीक है, मैं वहां पर वहां पर खिलाती हूँ तुम्हें, गोविंदास लेके जाओ उनको, गोविंदास में खिलाओ, लेकिन हम्म। डू स्मॉल लिटिल थिंग्स। हम्म। कोई तिलक लगा के आपसे पैसे ले रहा है, नॉट नेसेसरीली डिवोशनल एक्टिविटी। हाँ प्रभु, क्या होता है ना, वहां पे तो आप जहां जाओगे उस मंदिर के आगे 100 लोग आपको एटलीस्ट यही फॉलो करेंगे। तो फिर वही मैं मुझे कह रहा हूँ ऐसे ना, फील हो रहा था कि आप मना करना पड़ रहा है इतना बड़ा यार। तिलक लगा के, इतना बड़ा तिलक हाँ। लगा के जाओ, है ना, हाँ। और आप लोग तो गोपी डॉट भी बना लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, यू ऑलरेडी डन। ठीक है। अच्छा, और जिनके प्रभु तिलक नहीं ये होता है वो तो उनको पीछे पड़ जाते हैं, और ठीक है, मतलब देर आर थिंग्स माता जी, वी शुड नॉट बिकम पेडेंटिक, वी शुड नॉट, देखो इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फोकस हमें किस पे करना है, वी नीड टू भक्ति पे ही फोकस। फोकस करना है। हाँ प्रभु, बट मैं वही कह रही हूँ कि बहुत रेयर ही कभी कभी ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है या दिखती है। कभी कभी ऐसे ऐड भी दिखते हैं ना कि मेरे बच्चे को ऐसे कोई बहुत ऐसी क्रूशियल डिजीज है, प्लीज हेल्प फॉर दिस कॉज। तो हाँ मुझे कई बार ना बहुत पिटी फील होता है, बट मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ऐसे हर जगह आप जाके डोनेट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। नहीं बट एट द विश सेम टाइम आप एकदम हार्ड हार्टेड होके एकदम इग्नोर भी नहीं नहीं। कर सकते, यू फील रियली बैड। तो उस सिचुएशन में क्या हाँ, करना चाहिए तो प्रभु, क्या वही करो, पूछ मैं रहा मैं हूँ। मैं मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करा है, ठीक है। मेरे पास भी एक दो बार मैसेजेस ऐसे आए थे, जैसे एक पर्सन ने मुझे फोन मैसेज में करा था, इंदौर का कोई बंदा था, डिवोटी डिवोटी फैमिली का, उन्होंने कहीं से ऐसे ग्रुप में था, मैं उसमें डाल दिया था। तो मैंने क्या करा, इंदौर में टेम्पल प्रेसिडेंट को फोन करा, इंदौर में टेम्पल प्रेसिडेंट को फोन करा, मैंने कहा आपको पता है ये सिचुएशन। उन्होंने बोला नहीं पता है। तो फिर मैंने बोला देखो ये ऐसे ऐसे मैसेज आ रहा है और ये डिवोटी के उसमें बोला जा रहा है, अगर आप इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे तो मैं इसके लिए, मैं ऑर्गेनाइज करा दूंगा इसके लिए फंड, आप चिंता मत करो। उन्होंने पता करा और पता चला कि नथिंग नथिंग टू डू विद डिवोटीज, कोई डिवोटी नहीं था, वो सिर्फ क्योंकि इस फैमिली का वो कर रहे थे। फिर मैंने उनको बोला चलो डिवोटी नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इज इट ट्रू। तो मालूम पड़ा कि दैट पर्सन हैज बीन डूइंग द सेम थिंग फॉर 3 इयर्स, कि मेरे मेरे बच्चे बच्चे के पास 4 दिन ही बचे हैं, 5 दिन ही बचे हैं, ऐसे कर 3 साल से कर रहा है वो। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कम्युनिटीज में, ही हैज गॉन टू साईं बाबा के ग्रुप में, ही हैज गॉन टू ब्रह्म कुमारीज में, ही हैज गॉन टू डिफरेंट स्टफ। ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वी नीड टू डू सम ड्यू डिलीजेंस। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग यार, क्योंकि कई बार क्या होता है, शॉर्टकट लेना बड़ा आसान होता है। देखो कितना आसान है कि मेरे पास किसी को $100 ट्रांसफर कर दिए, बड़ा आसान है। मुश्किल काम क्या है, ऑथेंटिसिटी पता करना, है ना।
कई बार हो भी नहीं सकती है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि देर इफ यू रियली वांट टू हेल्प समवन ना, फाइंड आउट हाउ ऑथेंटिक दैट पर्सन इज, एंड ऑलवेज क्या बोलते हैं, यू नीड टू वेरीफाई विद 2 or 3। मेरा एक फंडा है, आई स्पीक टू 3 non-related people, है ना, to verify one information. If all 3 of them have the same version, then I go ahead and start helping them. Otherwise, there are बहुत सारे लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, और फिर उसमें क्या होता है कि we give them money, they do wrong stuff with that money, and कर्मा का हमारे पास ही आएगा फिर, है ना। सो प्रभु जिस ड्यू सिचुएशन में डिलिजेंस करो जितनी कर सकते हो, और प्रभु उसके जिस अलावा बस सिचुएशन भगवान से में माफी स्टिल बोलो। कंफ्यूजन, जिस सिचुएशन में स्टिल आपको क्लैरिटी नहीं है, तो बेटर है प्रे करके उनके लिए प्रे दिल करो, से हाँ, प्रे उनके लिए करके, प्रे है करो। ना। नरसिम्हा भगवान की उनके लिए प्रेयर, यू कैन सेंड हम्म, मनी टू इस्कॉन, अपने क्या बोलते हैं, कहाँ पर, मायापुर में करते हैं प्रभु। हाँ, मायापुर में, डायरेक्ट मायापुर ही भेज दो ना, इस्कॉन मायापुर में अच्छा भेजो डायरेक्टली, उनको बोलो कि ये बंदे के लिए नरसिम्हा एक करवा दो। अच्छा, दैट्स रियली गुड। दैट्स इट, सिंपल, डोंट डू हम्म एनीथिंग। सो वहां पर आपको पता है पैसा सही जगह जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग एट राइट प्लेस, एंड ही विल गेट हम्म मोर बेनिफिट विद नरसिम्हा थिंग, एंड इट विल बी हम्म। इटर्नल बेनिफिट। अभी आप इलाज के लिए पैसे भिजवा दोगे, इसलिए ओनली इस जन्म का है। नरसिम्हा यज्ञ करवा दिया, उसका इटर्निटी के लिए उसका अकाउंट हो गया, है ना। ठीक है प्रभु, आपका बहुत सारा टाइम इस पे मैंने ले नहीं लिया, नहीं, दिस बट इज वेरी एक्चुअली प्रभु वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कई बार दिमाग में ना ये सब डाउट्स मुझे आते हैं, मुझे इसकी कोई ना बात बहुत क्लैरिटी नहीं थी। मुझे कभी कभी लगता था डिवोटी हो के आप हार्ड हार्टेड कैसे बन सकते नहीं, हो वी ना। कैन नॉट बी हार्ड हार्टेड, नो, वी शुड नॉट बी हार्ड हार्टेड। तो अगर हम लोग प्रभु, हार्ड हार्टेड है ना, इसका मतलब वी आर नॉट डिवोटीज, सिंपल। हाँ तो प्रभु अभी आप जैसे कह रहे थे कि यू फर्स्ट ट्राई टू नो दैट इफ दे आर ऑथेंटिक देन यू हेल्प देम, तो फिर यस। आप किस इंटेंशन से, किस भाव से, कैसे, क्योंकि वो भी तो फ्रूटिव एक्शन ही रहेगा, तो आप हाँ, उसको नहीं, कैसे लेकिन भगवान मैं से। क्या करता हूँ, हाँ, तो देखो, जैसे फॉर हम्म एग्जांपल किसी की बीमारी की बात है, ठीक है, तो उसमें हम हम्म लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन हेल्प देम मटेरियली, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी कैन हेल्प देम हीलिंग। देर आर, जैसे मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, आई सेंड देम मनी टू डू सम हीलिंग फॉर दैट पर्सन, है ना, स्पिरिचुअल हीलिंग, मतलब नरसिम्हा 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 हीलिंग। तो जब मैं वो करवा देता हूँ, तो मेरे को पता है कि देखो, मैंने जो मेरा इंटेंशन क्या था, राइट नाउ मटेरियली भी हेल्प कर दिया, एंड एक्चुअली स्पिरिचुअली भी हेल्प कर दिया। आई नेवर डू ओनली मटेरियल हेल्प, नेवर एवर। सिर्फ मटेरियल हेल्प कर दी, पैसा ट्रांसफर कर दिया, या उसको बोल दिया तू ये देख लेना है, उसको खाना खिला दिया, इट्स नॉट, आई मीन, आई डोंट डू इट, आई यूज टू डू इट, नॉट एनी मोर। बट हाँ, प्रभु लेकिन मैं प्रे तो करती ही हूँ, बस अभी चाहे बस, मुझे कंफ्यूजन रहता है, नहीं क्लैरिटी है, इसलिए मैंने आज आपसे पूछा कि कुछ हम्म, नहीं होता है तो मैं हमेशा प्रे तो करती हूँ, बट प्रे तो करो। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर मुझे ऑथेंटिसिटी पता है तो आई कैन हेल्प देम आल्सो एंड देन वी कैन प्रे आल्सो, सो यस, दैट वे एंड, आल्सो इट विल बी स्पिरिचुअल ना प्रभु। हाँ, और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ऐसे बंदे के बारे में पता चलता है जिसको आप जानते भी नहीं हो, पता भी नहीं कहाँ है, लेकिन किसी के थ्रू पता करा है ना, मेरे साथ हुआ था ऐसा, एंड आई फेल्ट रियली, ऐड आते हैं यूट्यूब पे, बहुत ऐड आते रहते हैं कि इस यूट्यूब कॉज पे के नहीं, लिए मेरे को करो। ऐसे किसी के थ्रू पता चला था, बट मेरे को तो मैंने क्या, कुछ कुछ नहीं करा, मैंने थोड़ा सा लक्ष्मी ली, और मैंने मंदिर में हुंडी में डाल दी, ये कह के कि भगवान, दिस मनी आई एम गिविंग यू, सो दैट फ्रॉम दिस मनी देर वी कैन डू सम प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ऑल दैट सुकृति, ऑल दैट स्पिरिचुअल क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन, ठीक है, दैट्स इट। वाह प्रभु, अमेजिंग। उसके अलावा कुछ नहीं करने का। अमेजिंग। क्या होगा, देर इज नथिंग यू कैन डू, देर आर ओनली फ्यू थिंग्स हमारे हाथ में। समटाइम वी फील हेल्पलेस प्रभु, तो दिस इज वेरी हाँ, नाइस वे ऑफ डूइंग इट। थैंक यू प्रभु हाँ, जी, हरे कृष्ण। क्योंकि दिस इज द बेस्ट वी कैन डू फॉर पीपल, है ना। रुचिता माता जी, सॉरी, आपका क्वेश्चन था। प्रभु इतना कुछ हो गया ना, तो मेरा फ्लो वो थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत हाँ, पहले आया था, बट आई कैन स्टिल रिफ्रेज। प्लीज बोलिए। मेरा क्वेश्चन था कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आर नॉन फ्रूटिव, राइट? दैट्स व्हाट यू सेड. यस। But in practical life, we are not always doing so-called spiritual activities. हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, like at professional front, dealing with various kind of people in our lives, where we can't, like, practically imply those knowledge, yeah, learnings. So how do you ensure that, all activities in your life are spiritual so that it is non-fruitive? यस, गुड गुड क्वेश्चन, लाइक इट्स वेरी, दिस इज दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन आप सोच रहे हैं माता जी, दिस इज द पर्पस ऑफ भक्ति रक्षा, कि हम लोग लोगों को इस डायरेक्शन में सोचने के लिए एटलीस्ट कुछ फ्रूट फॉर थॉट्स तो दें,
एक्चुअली क्या है, दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए लाइफस्टाइल, इट्स नॉट ए, इट्स ए जर्नी. सो वो जो जर्नी है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन. Now, we will never be able to achieve in Kali Yuga. It is highly unlikely that we can achieve something like this. लेकिन I think मैं आपसे अपन लोग बात कर रहे थे. I was talking to Lalit Prabhu as well, and I was saying that Mm. Krishna is not a lot, not at all interested in our becoming Yeah. a pure devotee. Krishna is Right. only interested in our efforts to become pure devotee. कृष्ण क्योंकि हम लोग नहीं बन सकते, ठीक है. तो भगवान क्या देखते हैं कि तुम्हारी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से हाउ मच यू आर ट्राइंग. सो फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ प्रैक्टिकली देखा जाए तो आई डील विद, क्योंकि सपोज आई गॉट शेयर्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ बैंक, ठीक है. कॉमनवेल्थ के Mm. शेयर्स है मेरे पास. दैट मीन्स आई गेट डिविडेंड्स फ्रॉम दैट शेयर. ना दैट डिविडेंड इज द मनी दैट आई गेट, है ना. अब Mm. वो जो मनी है वो कहाँ से आ रही है, मेरे को बैंक मुझे दे रहा है, क्योंकि बैंक के पास मेरा पैसा पड़ा है. उस पैसे को बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, उधर से जो वो पैसे कमा रहा है उसमें से एक थोड़ा सा शेयर मेरे को दे रहा है, ठीक है. नौ Mm. कॉमनवेल्थ बैंक हर जगह पैसा वो करता है, हर एक को लोन देता है. ब्रोथल्स को भी लोन देता है, उनको क्या बोलते हैं जो बुचर बुचर शॉप्स को भी लोन देता है, सबको देता है. तो उन सबका कर्मा मेरे पास आता है, ठीक है. क्या मैं अवॉइड कर Mm. सकता हूँ उसको? नहीं कर सकता. आई आई सीबीए से सैलरी भी आ रही है, वो भी वहीं से आ रही है ना, क्योंकि. That's right. लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू? आई कांट चेंज दैट कि वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बट व्हाट आई कैन डू इज, as soon as the money hits my account, from that money every fortnight a month a bit of money goes to Radha Vallabh as So Varsha. is it just your mindset, how you think about it, or your thought No, no, no. process? No, no. So yes, you think about it. At the same time, you have to make sure that you don't think of that money as your own money and it is a gift from God. And how do you do is, भगवान तेरा तुझको अर्पण, उसमें से थोड़ा सा भगवान को दे दिया, तो मेरी जो इनकम जो मेरे पास आई है, दैट हैज बीन प्योरिफाइड राइट नाउ, ठीक है. ना ये चीज मैं हर जगह नहीं कर सकता. मैं सड़क पे जा रहा हूँ, किसी की गाड़ी खराब हो गई, मैंने उसमें धक्का लगा दिया, ठीक है. क्योंकि दिस इज माई, अब मैं इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी तो कर नहीं सकता. अब वो Mm. बंदे को मैंने धक्का लगा के उसकी गाड़ी स्टार्ट करा दी, उसने जाके, उसको कहाँ, वो जा रहा था पब में दारू पीने, उसका कर्मा Mm. लगेगा मुझे, क्योंकि आई इनेबल्ड हिम. गाड़ी खराब थी तो जा नहीं सकता था, मैंने गाड़ी मैं ठीक करा के दे दी, मतलब गाड़ी उसकी चलवा दी. So how do you decide then, ना So कब that's help what I'm करने saying. So का? what happens is you have to remember one thing, that helping someone has to be the first priority. Second priority क्या होनी चाहिए कि what can I do for his spiritual benefit. पहली क्या है, right now क्या जरूरत है. सपोज मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मैं कहता हूँ अरे यार, ये तो, इसको तो छोड़ो, पहले एम्बुलेंस की जगह पहले मैं मायापुर फोन करूंगा. अरे प्रभु नर्से में एक करवा दो यार, ये समवन इज ब्लीडिंग. नो, आई विल कॉल द हॉस्पिटल फर्स्ट, ठीक है. Right. आई विल डू माई मटीरियल fruitive action, but never forget to do the spiritual and top it up with the spiritual thing, ठीक है. So do whatever you're doing, your consciousness should be, what can I do in each situation, what can I do to help this person or this situation in a spiritual manner as well. जो आप कर रहे हो करते रहो, है ना. बट आइडिया इज एट द एंड ऑफ द डे, हम लोग वी शुड नॉट बी कॉन्शियस अबाउट कि वेदर आई एम इनकरिंग और इनकलकेटिंग कर्मास और नॉट, क्योंकि कर्मा एज ए, हम डिवोटीज का कर्मा भगवान देख रहे हैं ऑलरेडी. हम लोग को क्या Mm. करना है राइट नाउ, व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज माय साधना, व्हाट कैन आई डू टू मेक श्योर दैट आई हैव लेस इम्पैक्ट ऑफ माया ऑन मी, व्हाट कैन आई डू टू मेक श्योर दैट आई एम एक्चुअली becoming a better person on a daily basis. What can I do? Now we need to be practical. Just because we are a devotee doesn't mean कि यार somebody who is not wearing a tilak, कोई दो बंदे अगर पड़े हैं वहां पर, एक डिवोटी है एक नॉन डिवोटी है, who do you save first? Who do you save? I'll say a non-devotee, devotee, both, like depends. Yeah, What the situation is, जिसको जरूरत है, जिस I will definitely save a non devotee.
बिकॉज डिवोटी इज डेफिनेटली गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। नॉन डिवोटी को ठीक करो, उसको भक्ति दो, सो दैट ही व्हेन ही डाइज, व्हेनेवर ही डाइज, ही गो बैक टू माय, बैक टू गॉड। I mean, this is just, I may be wrong, but this is how I think of it. Like, अगर मेरे पास सिर्फ एक, ऑब्वियसली हेल्प दोनों की करो, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग, अगर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है ना, तो आई विल हेल्प ए नॉन डिवोटी, बिकॉज आई विल हेल्प दैट पर्सन बी कंड्यूसिव टू भक्ति थ्रू, अगर मैं उसको एज ए डिवोटी हेल्प कर रहा हूँ, देन सो दैट ही कैन बिकम अ लिटिल बिट मोर तो कंड्यूसिव। इज इट लाइक प्रभु कृष्णा भी नॉन डिवोटीज को ज्यादा हेल्प करते हैं बिकॉज उनको ज्यादा जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है। भगवान एक्चुअली, भगवान इज नहीं, वो तो कंप्लीटली सबके न्यूट्रल। लिए एक जैसे ही, हाँ। भगवान खुद ही कहते हैं, न मे द्वेष्युस्ति न प्रिया, न ये हम्म। भजंती तो माम भक्त्या, मई ते तेषु चापी हम। वो हमने वर्स देखा था ना लास्ट भक्ति वेक्षा क्लास में, हम्म। यही था कि आई एम एक्चुअली कंप्लीटली, कंप्लीटली मेरे को किसी से वो नहीं है, आई आई एम न्यूट्रल। बट जो मेरे भक्त हैं ना, वो मेरे फ्रेंड है ना, हम्म। बट और कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या है, हर किसी को मर्सी बराबर देते हैं। डज इट मेक सेंस रुचिता जी? Yes, yes, it does. But now प्रभु I have to start ये thinking, how do I apply, every activity I do? पहले वो materialistic है, उसको कैसे spiritual में, second initiative मेरा क्या होगा? I have to start thinking like that. यस यस, यू हैव टू रिमेम्बर, ऑलवेज टॉप इट अप। क्योंकि क्या होगा कि राइट नाउ बैंडेड लगा दिया आपने, इमीडिएटली ब्लड रोक दिया है, ठीक है, Right, लेकिन बंदा इन्फेक्शियस है, तो आपको सेकंड चीज क्या आएगी? ओके, व्हाट कैन आई डू टू गेट रिड ऑफ दैट इन्फेक्शन? right. क्योंकि अभी तो मैंने बैंडेड लगा दिया। सो अगर वो दूसरी चीज नहीं करोगे, तो ही विल, वो अल्टीमेटली इट्स नॉट बेनिफिशियल टू फॉर दैट पर्सन। सो यू डू द Hmm. नीडफुल। हाथ से, हाथ से ब्लड रोक लिया किसी को, कोई बात नहीं, बट इज इट इनफ? नो। देन यू हैव टू थिंक, ओके व्हाट कैन आई डू टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर परमानेंट। और उसके लिए Hmm. हमारी, उसके लिए जो हमारे एफर्ट होते हैं ना माधव जी, दैट एफर्ट शुड बी कीप ऑन गोइंग, एंड वी, भगवान हमारे एफर्ट देखते हैं। भगवान डजंट मीन कि कितने सक्सेसफुल हुए, डजंट रियली मैटर टू हिम एट ऑल, है ना। भगवान खुद ही बोलते हैं कि फल की इच्छा तो करो ही मत, है ना। Hmm. इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। Right. Yes, Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन था, जो आप अभी कह रहे थे, जैसे फ्रॉम स्पिरिचुअल गिविंग परस्पेक्टिव, अगर आप जैसे दान नहीं कर पा रहे हो फॉर वट एवर रीजन, योर सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन, बट डूइंग चैंटिंग फॉर समबडी, या इफ दे आर sick or not, is that the same thing? Like आप जैसे बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आप हर फोर्थ नाइट वो कर रहे हो, अगर आप वो नहीं कर रहे, बट अगर आप किसी के लिए थ्रू चैंटिंग और विशेस और पूजा, या बेसिकली हाँ, नॉन वेरी गुड। मटेरियलिस्टिक एंगल से भी करो, तो वुड दैट बी द सेम? या इट वुड बी द सेम। मैं जो अपना क्रेडिट फोर्टनाइटली, मिलेगा, वो जैसे उनको जो बेनिफिट आप देना चाह रहे हो अपने मन से, जो भी है, वो लाइक मिलेगा, वो हंड्रेड ओके, परसेंट मिलेगा, ओके, हंड्रेड बस। परसेंट। थैंक यू प्रभु। क्योंकि क्योंकि क्या होता है माता जी, दिस इज द अल्टीमेट निस्वार्थ भाव जो होता है ना, वो क्या होता है पता है? अल्टीमेट निस्वार्थ भाव ये होता है कि इफ यू कैन चैंट फॉर समवन ना, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, लिटरली नथिंग, एंड नथिंग कैन कंपेयर टू इट एज वेल। देन यू आर गिविंग देम अल्टीमेट, लाइक देयर इज नथिंग मोर दैट पर्सन कैन एवर नीड। It doesn't, nothing is left to be needed by that person, so प्रभु that is ultimate। प्रभु चैंटिंग एज इन स्पेशल एक्स्ट्रा राउंड, और जो हम चैंटिंग करते नहीं हैं नहीं, उसी में एक्स्ट्रा राउंड, एक्स्ट्रा राउंड, एक्स्ट्रा राउंड। एक्स्ट्रा राउंड, अगर हम अपनी चैंटिंग में प्रेयर कर दें उनके लिए तो वो नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, वो राउंड भी करके। है, वो देख, वो भी पावरफुल है, लेकिन क्या होता है कि देखो, थिंक अबाउट दिस, क्या कर रहे हो आप कि when we chant, the purpose of our chanting is, our purpose of our chanting is to be able to go closer to Krishna, ठीक है। that is the purpose of our chanting। तो हम लोग जो 16 राउंड करते हैं, जो हमने गुरु जी, गुरुदेव को बोल रखा है हम 16 राउंड करेंगे, वी आर डूइंग द 16 राउंड। व्हाट व्हाई वी डूइंग दैट? सो दैट वी कैन एक्चुअली keep our promise to the Guru Maharaj, and second, because I know that every day when I chant 16 rounds I am getting purified, ठीक है। लेकिन right now when you are chanting for someone else after you finish your round, now it's not about your purification. You're not saying, Bhagwan, please purify me so that I can go back home. No, Bhagwan, you know what? I'm chanting for this person. You know, ultimately everybody has to fly their own plane back to Godhead. लेकिन when you do this, when you chant for people, you might give someone तिनके का सहारा, थोड़ा सा, and sometimes
That's all people need. They don't need you to come and help them and build a castle for them. They want is throw a stick towards me, man. I just want to stay above the water. And sometimes those chanting might be the only thing that will save them, materially and spiritually both. So that is probably the highest thing you can do. एंड मैं ऋचा माता जी मैं बता रहा था कि मैं जब फोर्टनाइटली मेरे अकाउंट में से जो पैसे आता है वो एक्चुअली उसका उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हम जो मनी दैट आई एम गेटिंग इट मे नॉट बी दैट क्या स्पिरिचुअल क्या बोलते हैं, Because it's coming. है ना, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. Yeah. तो उसको प्योरीफाइड करने के लिए, टू प्योरीफाई माई अर्निंग्स, आई नीड टू डू दिस. लेकिन कई एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि तो मैं इफ माई सेल ड्रग्स, है ना, उसका पैसे भी मैं भगवान के दे दूंगा, वुड इट वर्क? नो, इट वुडंट वर्क. क्योंकि नाउ यू आर, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू अर्न मनी बाय deliberately creating problems for other people. Then that money Krishna को आप दे भी दोगे, still won't get spiritualized. You will still have to pay for your sins for that, and even horrible because you're doing in the name of Krishna. So there is a tenth offense, मतलब there is an offense that come नाम अपराध जिसको कहते हैं ना, in the name of the Lord you're doing something very heinous. So that is even more, you know, bad. It's worse than anything else. But if you're genuinely, like for example, apne Mithul Prabhu, do you remember when he used to work for gambling? Yes, uh, Prabhu. तो मितुल प्रभु ने मुझसे पूछा था कि प्रभु मैं क्या करूं. मैंने कहा प्रभु यू कीप लुकिंग फॉर अनदर जॉब, डोंट, डजंट मैटर कितनी भी अच्छी जॉब है. ही वाज स्टिल पेइंग मनी टू टू temple, but I said no, don't stay in that job, try and look for another job, because gaining money from gambling is considered, not considered to be a income uh, that is authorized. So what, so Prabhu, Mithul Prabhu started looking and finally got a job, simple as that. The problem ये नहीं है कि, और तब तक वो ऐसा नहीं था कि उनको ये बोल दिया छोड़ दो आज के आज जॉब, नो नो नो, you keep doing it, and you keep trying, and then get another job and then you leave it, let it go. It's So very interesting, Prabhu, you said that because I didn't even think on that tangent. अभी Tabcorp की एक job निकली थी and I applied for it and I was thinking, but now when I'm listening to you, I'm thinking Tabcorp का main business तो gambling ही है. हाँ, Reality. लेकिन ये क्या है, ये मैं तब बोल रहा हूँ माता जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू आर राइट. अगर आपके पास ऑप्शन है ना, आपके दो ऑप्शन हो, एक टैब का दूसरे का, तो यू ऑलवेज पिक द सेकंड वन इवन इफ इट्स लोअर लोअर सैलरी. बट अगर आपके पास सिर्फ एक टैब की जॉब है, सपोज यू गेट ओनली वन इंटरव्यू एंड यू गेट ओनली वन जॉब ऑफर, देन यू टेक इट, बट कीप लुकिंग. दैट्स But व्हाट आई meant. would that not, again, I'm No, conscious no, no. thing No, it what happens is, aware of. शिला प्रभु नहीं, भगवान कहते हैं, the first priority that you have is to protect this body, जो बॉडी एंड माइंड जो हमें भगवान ने दिया है, so that अगर हमारा बॉडी एंड माइंड प्रोटेक्ट होगा, then we will be able to serve the Lord. ठीक है. तो इफ यू जस्ट प्रोटेक्ट दिस बॉडी टू सर्व द लॉर्ड, अगर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, देन आई कैन डू अ जॉब विच इज, जैसे मिथिल प्रभु को मैंने बोला था, कीप डूइंग दैट जॉब. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राइट नाउ, अगर क्या होता है, अगर मैं सपोज मैं कहीं पर जंगल में गया, आई गेट लॉस्ट, और काफी सालों तक आई एम, एक सेकेंड ना, इज इट अर्जेंट? नो, हैवंट, बाय. Sorry, Roxy was out, so drop someone. So सपोज मैं जंगल में हूँ, मैं पूरा का पूरा आई एम लॉस्ट, है ना, और मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है, देर इज नथिंग देयर, है ना, एंड आई हैव टू गो बैक होम, एंड आई नीड टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन. इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, और उस बॉडी के लिए अगर मेरे को किसी जानवर को मार के उसको पका के खाना पड़ता है, दैट इज नॉट अ सिन. But if I do this for my sense gratification, then that is sin. So, right now, getting a job at a gambling firm for the sake of protecting myself is no problem. But staying there, being lazy and not looking for another job,
and being complacent, that is, then that same job will become problematic, but otherwise it won't. Hope this makes sense. Okay. Yes, yes, that makes sense, Prabhu. Okay, Okay, thank you, Prabhu. no problem, no problem. प्रभु आई नो थोड़ा ओवर टाइम हो रहा है प्रभु, बस इसका बोलिए एक बोलिए। फॉलो अप क्वेश्चन भी था प्रभु। जैसे अभी आपने बताया तो मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि जंगल में हम लोग को वो है ना किसी को किल करके खाना पड़े, वो सिचुएशन ऐसी है प्रभु की डू और डाई वाली है। बट अगर ये जो आप जॉब के लिए कह रहे हो तो if it is also in the same situation it should happen, or because sometime we are just doing it for the just to give support to our family, or for some other reason, just we want to be independent or something. As long as, no, 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 as long as we are not doing it for sense gratification, it is bona fide, but we should have a exit out of it. The only jobs which are really, really against, so gambling is probably the least of the four. The most horrible thing is the illicit affairs, illicit sex, है ना? एक वो you can't manipulate with that. Meat eating is the second one. And meat eating, intoxication is the third one, and the last one is gambling. And last one is gambling. That means this is the least of the four. Um, तो क्या होता है, you can do a little bit of compromise in this, the last one. You can do a little bit of compromise in the second last one as well. But the first two, illicit and meat eating, you can't do compromise with this. The only compromise with meat eating is do or die wala. But otherwise, in terms of sustenance, for your sustenance, but if you're doing it for sense gratification, you're doing like for example, a gambling की कोई जॉब है, आप उसको इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसमें आपको $100,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, यू वांट टू जस्ट एंजॉय विद दैट मनी, दैट इज रॉन्ग. बट अगर आपके पास Got एक it, ही जॉब, Prabhu. इफ यू डिडंट 10 जॉब्स, आपको एक ही मिली है उसमें से, देन गो अहेड डू इट, बिकॉज एंड देन कीप लुकिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट, क्योंकि देयर आर थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, है ना? और Thank ये you. भी जॉब हमें इसलिए मिली है सब बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मास. But right now, because we are choosing a different karma, our future will be different. That means if you keep looking, you will definitely find another job because now you've changed your karmas, you know. So now Krishna is looking after you. Hope Thank that you, makes Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for today's. You have cleared so many confusions. no problem. Hare Krishna. Very nice. Thank you, Mataji. Thank you very much. Questions पूछने से क्या होता है? Everybody gets a lot of clarity, है ना? वरना क्या होता है, मैं तो जो टॉपिक प्रिपेयर करा उसके पूरा बोल दिया, बट दैट्स इट. बट व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन माता दी, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द होल टीचिंग. अगर ये नहीं होना तो देर इज नो पॉइंट रीडिंग, टू बी ऑनेस्ट. हमें कुछ नहीं याद रहेगा. थैंक यू वेरी मच. शिला प्रभुपाद की जय. Thank you. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण। कृपा सिंधु भैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण। हरे Yeah, कृष्ण. Prabhu. हरे Thank you कृष्ण for the प्रभु। nice class. Hari bol. हरे बोल. हरे हरि कृष्ण. बोल। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.